राग बिलावला महला नवा दुपदे। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। दुख हरता हर नाम पहचानो। अजामल गन का जह सिमरत। मुकत पे जी जानो रहाओ। गाज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं। जब ही राम बखानो। नारद कहत सुनत त्रुबारक। भजन माहे लपटानो। अचल अमर निरपै पद पायो। जगत जाहे हैरानो। नानक कहत भगत रक्षक हर। निकट ताहे तुम मानो। अचल अमर निरपै पद पायो। जगत जाहे हैरानो। नानक कहत भगत रक्षक हर। निकट ताहे तुम मानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र मुकदस गोद अंदर आप समूह हाजरीन संध्या दे दीवाना अंदर जुड़ बैठे हो। गुरुदेव सतगुरु जी ने कृपा रहमत करके सुभागा समा सानू बख्शिश किया है पावन पवित्र बाणी दे लड़ लगन दा जी। गुरुदेव सतगुरु जी अज दे इस पावन पवित्र शब्द के अंदर जो कि राग बिलावल के अंदर पावन अंक 830 के उपर सुभायमान है। महला नौवा धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखारबिंद तो उचारण किया होया पावन पवित्र ये शब्द दो पदे। इस पावन पवित्र शब्द के दो पदे दो बद हैं। एक ओंकार सत गुरु प्रसाद। संखेप मूल मंत्र के रूप दे सतगुरु पातशाह जी इस पावन पवित्र शब्द की आरंभता करते हैं भी वो एक अकाल पुरख जिहड़ा है सच्चा गुरु है। तो वह गुरु की रहमत उहदी कृपा उहदी बख्शिश के नाल ही इदां दा गुरु सानू प्राप्त होता है। तो रहाओ दे बंद अंदर मेरे सतगुरु पातशाह जो उपदेश बख्शिश करते ने। दुख हरता हर नाम पहचानो। आजामल गन का जेह सिमरत। मुकत पाए जी जानो रहाओ। गुरुदेव सतगुरु जी रहाओ के बंद के अंदर जो विचार सानू बख्शिश कर रहे हैं। इत्थे सतगुरु पातशाह जी ने दुखों का जिक्र किया है भी वो परमात्मा जिहड़ा है साडे दुखों नू हरण वाला है, दुखों नू मिटाउण वाला है। हुण माफ़ करना साध संगत जी, संसार दे विच दुख जिहड़े ना एक ते शरीर रूपी दुख ने जिहड़ा सुभावक है भी मनुख दे उत्ते आउंदे ते जांदे रहिंदे ने। सुख दुख दोतर कपड़े पहरे जाए मनुख भी कदे सुख ते कदे दुख।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹੁੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਅਣਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਉਸ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਦਾਰੂ ਤੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਧੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਕੱਢਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ,
मैनू तो बड़ी मुसीबत विचों तुसीं बाहर कढ़ दिता। वो कहन लगी बापू जी बाबा जी जिहड़ा तुसीं मैनू दारू दस्सिया सी एक बारी ये दसो तो सही भी वो दारू की सी, वो दारू किस विधि दे नाल किद्दां बनाया जांदा मैनू दसो, मैं होर भी बहुतिआं नूं देना। वो बजुर्ग कहन लगा कहंदा धीए दारू कुछ नहीं सी, वो सीसी विच सिर्फ तो सिर्फ मैं एक पानी भर के तैनूं दिता सी, होर उहदे विच कोई दारू नहीं सी। गल समझण दी ये है भी जदों तेरी सस बोलती है तू वो मूँह विच दारू पा लिया तो तैनूं मैं क्या तू कुछ बोलना नहीं। पल्ले बल्लण वाली गल ये है भी जदों कोई एक बोले ना तो आप चुप कर जाओ, कलेश खत्म हो जाएगा। असल पल्ले बल्लण वाली गल ये सी भी वो बोले तो तू भी बोले तो इदां तो लड़ाई खत्म होने वाली नहीं। भी वो जदों बोलेगी तू उस वेले वो दारू मूँह विच पा लेना जिहड़ा पानी सी ते तू चुप कर जाना, जिहदे नाल कलेश तुहाडे घर दे विचों खत्म हो गया। उस नौ ते सस दा घर दे विच ना बड़ा प्रेम पै गया। फिर वो सस भी समझण लग गई इस गल नूं भी मैं इनू बार बार किसी ना किसी गल दे उत्ते इनू ताने माने दिंदी आ पर ये परत के मैनू कदे जवाब नहीं दिंदी। उन्हां दा आपस विच फिर बड़ा प्रेम बड़ा इतफाक उस परिवार दे विच बन गया। तो ये साध संगत जी ये की रमज है कि नुकता है, गल समझण वाली ये है भी सतगुरु पातशाह परमात्मा का रब्बी इल्हाम जड़ा है उसकी जिहड़ी बाणी है साडे दुखों तो सानू किद्दां छुड़ा सकती है। माफ़ करना साध संगत जी, बाणी दे तवीत बना बना के गल दे विच पा लैणे, शब्दां नूं बन लेना जां हत्थां दे उत्ते धागे इत्यादि बन लेना, इस दे नाल साडा छुटकारा नहीं होवेगा। गुरबाणी इस तो सानू मुक्ति किद्दां दिवाउंदी, निजात किद्दां दिवाउंदी है भी सतगुरु पातशाह दी वो बाणी सानू उपदेश के रूप दे विच ये दसदी है भी जेड़े माड़े कर्मां विच तू लग्गिया ना, जेड़े विकारां नूं तू चक्की फिरदा इन्हां नूं छड्ड दे, इन्हां दा साथ छड्ड दे। कहण तो भाव भी चंगी संगत जिहड़ी है वो मनुख दा जीवन बदल के रख दिंदी है। तो इसे गल नूं सतगुरु पातशाह इत्थे समझाउंदे ने भी दुख हरता हर नाम पछानो, भी परमात्मा दे उस बचनां नूं तू अपनी जिंदगी दे विच पछाण, उन्हां नूं कमा। क्यों? क्योंकि असल दुखां तो छुटकारा तैनूं इन्हां नहीं दिवाउणा है। बंधना तो खलासी तेरी, बंधना तो मुक्ति जिहड़ी है वो परमात्मा दे नाम ने ही दिवाउणी है। आजामल गनका जह सिमरत मुक्त पए जी जानो। हुण पातशाह जी ना देखो उदाहरणा दिंदे ने। पहला सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी का उपदेश बख्शिश किया भी किद्दां असी अपने दुखों तो मुक्त हो सकते हैं। तो हुण सतगुरु पातशाह जी ने संसार में वो बीतियां हुई गल्लां इतिहास में जो वापरियां जिन्हां दा इतिहास गवाह है उन्हां दियां सतगुरु पातशाह उदाहरणा दिंदे ने भी सखाली गल समझ विच आ जाए। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का ये मनुख नूं उपदेश जिहड़ा है वो समझाउण दा ना तरीका है। हुण माफ़ करना साध संगत जी, देखो साडे आम घरेलू गल्लां ने साडे घरां विच पैण वालियां। कोई मनुख जिहड़ा है विकारां तो परेशान होवे, कोई इस्त्री भी परेशान हो सकती है, वासनावां तो परेशान हो सकते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार तो परेशानियां हो सकदियां ने जिन्हां दे करके घर दे विच कलेश पिया होवे। ते काम रूपी वासना जिहड़ी है मनुख दा जीवन जिहड़ा ना बर्बाद करके रख दिंदी। ते सतगुरु पातशाह फिर उदाहरण दे के समझाउंदे। पातशाह कहंदे आजामल गनका जह सिमरत मुक्त भए जी जानो। पातशाह कहंदे भी तुसीं अजामल का नाम सुनिया ते गनका का नाम सुनिया। कहंदे जी सुनिया। कहंदे अजामल वो होया है जिस दा जन्म जिहड़ा है उच्ची कुल ब्राह्मण कुल दे विच जिहदा जन्म होया सी। ते कहंदे देखो चंगी कुल दे विच जन्म होया फिर भी की होया, माड़ी संगत दे विच पै गया, माड़े लोकां दे नाल मित्रता उन्हें पाली जिहदे करके वो काम वासनावां दे विच ग्रसिया गया, उहदा जीवन बर्बाद हो गया। ते पातशाह कहंदे एक इस्त्री सी गनका जिहड़ी संसार दे विच जिहदी बड़ी प्रसिद्धि सी, लोग बड़े उहनूं जाणदे सन,
पर पातशाह कहते संसार दे विच की खटिया, काम वासनावां दे विच वो अलिप्त होके रह गई, काम वासनावां दे विच फस के ही रह गई, खचित होके रह गई। पर पातशाह कहते फिर भी उम्मीद नहीं छड्डनी चाहिए। किसी दी भी जिंदगी दे विच एक मोड़ अहम आ सकता है। इस गल दे उत्ते कदे उम्मीद ना छड्ड देना भी जेकर हुण असीं माड़े कुराहे रस्ते दे उत्ते पै गए ते हुण असीं कदे सच दे मार्ग दे उत्ते चल नहीं सकदे, असीं कदे परमात्मा दे लड़ लग नहीं सकदे। ते पातशाह कहते एक दिन इदां दा आया, एक समा इदां दा आया भी ये दोनों अजामल ते गनका दोनों ही काम वासना दे विच अलिप्त सन। एक दिन इदां दा आया भी चंगे साधु पुरखां दी इन्हां संगत कीती, जिन्हां इन्हां नूं उपदेश करके गल ये समझाई जिद्दां गुरु नानक देव पातशाह जी ने संसार दे विच उपदेश कीता सी। जिस तरह सतगुरु नानक देव पातशाह जी ने भाई सज्जण नूं समझाया सी, उन्होंने ठग तो सज्जण बनाया सी, कौटे राक्ष नूं समझाया सी, सिर्फ ते सिर्फ सतगुरु पातशाह जी ने उपदेश दिता। कहते भी उस संगत ने की होया, उन्हां दी जिंदगी दे विच बदलाव पैदा कर दिता। उस दिन तो मोड़ा इदां दा पिया भी वो परमात्मा दे लड़ लग गए, उहदी बंदगी उहदी इबादत करनी शुरू कर दी। तो सतगुरु पातशाह कहते जिहड़े गर्क गया सी ना, जिन्हां दा जीवन भैड़ा हो चुकिया सी, वो अज चंगे रस्ते दे उत्ते तुर पए ने। ते पातशाह फिर समझाउंदे कहंदे हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरियो गनका हूँ गत पाई। भी देखो हरि दा नाम सदा सुखदाई हुंदा है, जिन्हों जपण दे नाल वड्डे वड्डे विकारी काम वासनावां विच पए होए वो लोग अजामल ते गनका वर्गे जिन्हां दी मुक्ति हो गई, बंधना तो बंध खलासी हो गई। तो सतगुरु पातशाह कहते संसार दे विच वो भी मुक्त गिने गए। अगे पातशाह समझाउंदे कहते गज की त्रास मिट्टी छिन्हूं मैं, जब ही राम बखानो। कहते संसार दे विच इंसान तो मुक्त होंदे तुसीं सुने होणगे, पर यह भी गल सुनो जानवर भी मुक्त हो जाते हैं। कला मनुख कला बंदा नहीं मुक्त होंदा, ओदी मुक्ति नहीं होंदी, वो सीधे राहे कला वो भी नहीं पैंदा, जानवर भी मुक्त हो जाते ने। भी एक हाथी जड़ा सी, कहते एक हाथी एक तलाब दे विच पानी पीण वास्ते जांदा है। हाथी पानी पीण वास्ते तलाब में जांदा ते कहते उहदे विच एक जानवर रहिंदा सी तंदूआ। वो तंदूआ उहदियां बड़ियां बड़ियां मुछां सन, जिन्हां दे नाल उहने हाथी दे पैर नूं ना सकंजा पा लिया ते हाथी फस गया। सिर्फ ते सिर्फ उहदी सुंड जिहड़ी बाहर रह जांदी है। ते अखीरी उन्हें सारे हीले वसीले करके देख ले, देखो हाथी कितना ताकतवर है, फिर भी उहदी ताकत उहदी समर्था उथे कुछ भी नहीं कर सकी। पातशाह कहते वो कुछ भी नहीं कर पाया, उहदी सुंड बाहर रह गई। उस वेले अखीरी उन्हें परमात्मा नू याद किया, उस नारायण नू याद किया, ते परमात्मा दे ओदी पुकार सुन के उन्होंने उस तंदुए दे चंगुल दे विचों उन्होंने आज़ाद करवा दिता। ओदी भी मुक्ति हो गई। पातशाह कहते वो भी मुक्त हो गया। कल्ले मनुख नहीं तरे संसार दे विच परमात्मा नू जिन्हें भी सुनिया ना, सुनी पुकार दातार प्रभ, वो परमात्मा हर किसी की पुकार सुनदा। वो पुकार सुन के उन्हें हाथी नू भी बंधना तो मुक्त करवा दिता। ते भलिओ तुसी अपने आप नू उन्हां जानवरां नालों उत्तम गिणदे हो कि नीच गिणदे हो? तुसी उन्हां नालों उत्तम हो। तुसी वो जानवर है तो तुसी मनुख हो, फिर तुसी क्यों नहीं तर सकते? अगे पातशाह फिर समझाउंदे ने, कहंदे नारद कहत सुनत त्रु बारिक, भजन माहे लपटानो। कहंदे तुसी ध्रुव का नाम सुनिया होवेगा, संसार दे विच बड़ी उहदी प्रसिद्धि सी। हुण देखो साध संगत जी, घरां दे कलेश तो, घरां दीयां लड़ाइयां तो हर एक मनुख परेशान है। किसी नूं उहदा हक ना मिले वो भी मायूस हो जाता, परेशान हो जाता भी मैनूं मेरा हक क्यों नहीं मिलिया। ते कहंदे जिहड़ा
ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰੂ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਕ